So, good morning, students. This is Dr. Rajiv Ranjan, and I am going to tell about horticulture in details. So, in first lecture, you have to study what is horticulture, what is the importance of horticulture, and what are the different branches of horticulture. So, I think this is new subject to you. So, first we'll know little about some facts about horticulture. So, if you see now population by 2050 it is going to be around 9 million, 9 billion people. And UN, that is called United Nations, wants that world must produce 60% more food by 2050 to avoid mass unrest. इसका मतलब ये हुआ कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हम लोगों को फूड प्रोडक्शन करना जरूरी है. And as per FAO, that is called Food and Agriculture Organization estimates, however, 842 million people in the world will remain undernourished, with nearly two-thirds of them living in Asia Pacific, and 1 in 4 children under the age of 5 will remain stunted. So these are the different facts. So then question arises, what is the food security and where is the solution? सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो भोजन में वी टेक कार्बोहाइड्रेट, वी टेक प्रोटीन्स, वी टेक मिनरल्स, वी टेक vitamins. Okay, so where horticulture will come into picture? So this is the important because जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि हम चीज़ों को समझें, परखें और कैसे यूज करना है उसके बारे में हम जानें. So food security exists when all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Okay, so means आप अगर भोजन लेते हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट मिलना चाहिए. इसके अलावा फिजिकल, सोशल, जो इकोनॉमिक, जो हमारा जो लाइफ है वो फुलफिल होना चाहिए. क्योंकि आप देखोगे, इफ यू गो टू विलेज, इफ यू गो टू ट्राइबल एरिया, इफ यू गो टू बैकवर्ड पीपल, so they take only rice or maybe sometimes vegetables. In general they take rice and maybe sometimes pulse or dal. So they will, that will provide only carbohydrate and the protein. But what about vitamins? What about minerals? What about fats? So many things are there. Because if you combine all the diets, all the what you call food component, then it will give rise to the complete diet. So malnutrition is the condition that occurs when your body does not get enough nutrition. तो malnutrition एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि आप देखोगे कि अगर वाइटमिन नहीं खाओगे तो उससे बीमारी होती है, अगर हम प्रोटीन नहीं खाते हैं तो उससे बीमारी होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं तो उससे बीमारी होती है, मिनरल्स नहीं खाते हैं तो उससे बीमारी होती है. मतलब हर किसी न किसी चीज की कमी से कोई ना कोई बीमारी होती है. इसलिए हम हमेशा बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट. अगर हम केवल एक ही चीज को खाएंगे, अगर दूसरा कंपोनेंट नहीं खाएंगे तो क्या उसकी कमी हो जाएगी. जिस तरह से आपने पढ़ा होगा एसेंशियल एमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो हम लोगों को फूड में हर चीज का सेवन करना चाहिए, हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए. क्योंकि आज के इस हेक्टिक लाइफ में हम लोग खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देते हैं जिसका खामियाना हम लोग को बाद में या बच्चों को भुगतना पड़ता है. ओके, so now facts about malnutrition in India. So over 900 million people in the world are undernourished. मीन्स इन लोगों को जो है ना जितना भोजन मिलना चाहिए वो भोजन नहीं मिल पा रहा है. माल न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 3.5 मिलियन डेथ ईच ईयर. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि भोजन और कंप्लीट डाइट से या न्यूट्रिशन की कमी से कितने लोगों की मौत हो रही है पर ईयर.
प्रत्येक साल में, एंड एवरी 3 seconds a person dies from malnutrition. So this is data. So sometimes varies, maybe sometimes 4 seconds, sometimes 5 seconds. But this is the data. Maybe I think 4 year back or 3 year back. So this is the general means persons are not getting food or proper food, and that's why due to malnutrition even person or children die. And 42% Indian population, mostly women and children, are malnourished. क्योंकि मैं वही बता रहा था कि चिल्ड्रेन आर मोर vulnerable. वीमेन, वाई वीमेन? बिकॉज वीमेन क्या है कि वो क्या है, बच्चों को बर्थ देते हैं तो उसमें उनको भोजन बहुत जरूरी है। अगर भोजन प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा तो फिर क्या है, वीकनेस होगा, कमजोरी होगी, बीमारी होगी, फाइनली डेथ होगी। तो 42% ये जो पॉपुलेशन है, हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है, जिसमें कि वीमेन एंड चिल्ड्रेन आर माल नॉरिश्ड। मीन्स जितना हमको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए। नाउ you can see this is again data. 2.5 lakh, that is 2.2 lakh 50,000 to 5 lakh children lose their sight every year due to vitamin A deficiency. क्योंकि आपको पता है कि विटामिन ए के डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि कई लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या है कि ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ए होता है या और भी चीज़ों में होता है, तो नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या है कि उनकी जो साइट होते हैं वो खराब रहते हैं, जो विजन होते हैं वो खराब रहते हैं। एंड ओवर हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी which reduces their productivity and school performance. So again, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, नॉट ओनली इन इंडियन सिनेरियो, ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन का सिनेरियो है कि आयरन डिफिशियंसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको आपने सुना होगा कि आयरन डिफिशियंसी, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन हमारे ब्लड के लिए भी आपने पढ़ा होगा कि आयरन ऑक्सीजन में एफिनिटी होती है। तो आयरन अगर कमी हो जाता है, क्या है कि आपको ब्लड बनना कम हो जाता है। खासकर वीमेन के लिए आपने देखा होगा कि जैसे कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होना होना चाहिए, वो होना चाहिए 12 से 14 उसका लेवल होना चाहिए। लेकिन वीमेन को पावर देखोगे आप कि वीमेन के केस में क्या है, कभी कभी 8 हो जाता है, कभी कभी 9 हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, जो आयरन डिफिशियंसी है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड से रिलेटेड है। अगर ब्लड नहीं बनेगा तो फिर आपको बॉडी में कमजोरी आएगी। देन अगेन विटामिन सी डिफिशियंसी comprises immunity and results in poor wound healing. सो अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आज के जो कोविड जो सिचुएशन है या जो पहले था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नींबू का रस पीना शुरू कर दिए। क्योंकि नींबू के रस में क्या है, लेमन के जो आपका जो जूस है उसमें विटामिन सी होता है और वो इम्यूनो बूस्टर होता है, इम्यून को बूस्ट करता है। इसलिए अगर इसकी कमी होती है तो उन हीलिंग तो कम होगा ही, आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि विटामिन सी भरपूर लेना चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को भी सलाह देता हूँ कि हाँ आप आंवला खाइए या लेमन का जूस पीजिए, या बहुत सारे सोर्स हैं, जो भी जो खट्टे पदार्थ हैं, जो खट्टे जो चीज़ें हैं उसमें विटामिन सी मिलता है, तो उसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। Malnutrition suppresses the immune system and contributes to half of all childhood deaths. So ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो माल न्यूट्रिशन है, ये अगर भोजन, अगर जो हमारा जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशन अगर एक भरपूर नहीं मिलता है, जितना चाहिए उतना नहीं होगा, तो क्या है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा और फाइनली इट विल लीड टू द चाइल्डहुड डेथ। मतलब कि जितना आदमी का सर्वाइवल जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो नहीं हो पाएगा, फाइनली लोगों की डेथ हो जाती है। नाउ, so how horticulture can solve the problem of malnutrition? So ये I think you might be knowing about Professor M.S. Swaminathan. He is the great scientist. He is alive, and he is the father of green revolution in India. I'm not telling in the world. In world नॉर्मल बोलंग साहब है, बट इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति के जनक, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन हैं। तो उनका कहना यह है कि ड्यू टू रिच कंटेंट ऑफ विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स,
horticulture produce holds great nutritional significance. Horticulture alone can solve the malnutrition, undernutrition, and hidden hunger problems of India. इनका जो समनाथन साहब है इनका ये बात सही है, क्योंकि अगर आप देख लो, अगर बात करते हैं हॉर्टिकल्चर का, जो कुछ देर के बाद मैं बताऊंगा कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, या इसके कितने ब्रांचेज हैं, तो आप देखोगे कि हॉर्टिकल्चर जैसे कि वाइटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीजें, ये सारे तमाम चीजें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे चीजें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में मौजूद है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है दैट इज पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स है पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिनरल्स है पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फाइबर्स है पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सो सी, जैसे कि नॉर्मल जो क्रॉप की बात करते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, जो भी मेज फ्लोर, दीज आर नॉट कम्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, दीज आर द सीरियल पल्स। ओके, लेकिन अगर बात करते हैं वाइटामिन, फाइबर, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि जब भी बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट तो हॉर्टिकल्चर का मुद्दा आता है। हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, हम लोगों को नॉर्मल फ्रूट्स खाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें काफी रिच मात्रा में, रिच अमाउंट में वाइटामिन होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो बात सही है कि हॉर्टिकल्चर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मालन्यूट्रिशन। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जो नॉर्मल खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ आपने देखा होगा कि सैलेड खाते हैं या हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई पर्सन अगर नॉर्मल चावल खा रहा है, दाल खा रहा है, तो चावल दाल से क्या हुआ, उसको केवल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन बाकी चीजें कहाँ से आएगी? इसलिए आपको वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, इसलिए आपको फ्रूट्स खाना पड़ेगा। सो ही डेफिनेटली, whatever he has given the quotation or statement, I think I am agree with him. So now come to the horticulture, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में हॉर्टिकल्चर कोर्स पढ़ना है, और ये हॉर्टिकल्चर क्यों पढ़ना है, जब आप ये कोर्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि हॉर्टिकल्चर जैसे बताया था कि इट इज गोइंग टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। सो नाउ we will come to the definition of horticulture. So again, I am telling the word first used in 1600, but this is more important. So the horticulture terms derived from Latin words. See, many words are there. Some words derived from Greek word, some words derived from French word, some words derived from other word, English word. But horticulture, it is basically derived from two Latin words. First is hortus. Hortus means garden, and second word that is called culture means cultura. It means cultivation. Means one way you can tell that cultivation of garden. लेकिन हम लोग गार्डन का कल्टिवेशन नहीं करते हैं, हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कल्टिवेशन करते हैं। सो हॉर्टिकल्चर मीन्स कल्टिवेटेड गार्डन और कल्चर ऑफ गार्डन प्लांट्स। तो ये हम कह सकते हैं कि उसमें हम लोग प्लांट का कल्टिवेशन करते हैं। So in modern horticulture may be defined as part of agricultural science, because horticulture is the part of agriculture. So which deals with production, utilization, and improvement of fruits, vegetables, flowers, ornamentals, plantation crop, medicinal and aromatic plants. तो इसमें सारे ब्रांचेस को दिया गया है, जिसको हम थोड़ी देर में बताएंगे कि क्या क्या ब्रांच है हॉर्टिकल्चर के। ओके, so these are the, I think, definition in detail. So food security exists when all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Okay, so means आप अगर भोजन लेते हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल, सोशल, जो इकोनॉमिक, जो हमारा जो लाइफ है, वो फुलफिल होना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे, इफ यू गो टू विलेज, इफ यू गो टू ट्राइबल एरिया, इफ यू गो टू बैकवर्ड पीपल, so they take only rice or maybe sometimes vegetables. In general, they take rice and maybe sometimes pulse or dal. So they will, that will provide only carbohydrate and the protein. But what about vitamins? What about minerals? What about fats? So many things are there, because if you combine all the diets, all the what you call food component,
then it will give rise to the complete diet. So malnutrition is the condition that occurs when your body does not get enough nutrition. तो malnutrition एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर विटामिन नहीं खाओगे तो उससे बीमारी होती है, अगर हम प्रोटीन नहीं खाते हैं तो उससे बीमारी होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं. Now again question arises, so horticulture is science or art? So again, if you define, so horticulture may be known as applied botany because it takes principle or it utilizes the principle of botany such as morphology, anatomy, physiology and applies them to growing crops. Again, it also uses other science such as chemistry, biochemistry, mathematics and genetics. कि कोई भी साइंस हो, ये सारे साइंस बहुत बेसिक है. केमिस्ट्री आप मानते हैं बेसिक लेवल पे, मोलिकुलर लेवल पे केमिस्ट्री बिल्कुल सेम है. बायोकेमिस्ट्री से क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है, तो मे बी. And horticulture is also art form. So art form in terms of like grafting, floral designing, landscaping. So आप देखोगे, आप जाओगे अगर किसी हॉर्टिकल्चर गार्डन में जाओगे या मेडिसिनल गार्डन में जाओगे या बहुत सारे गार्डन्स हैं, ओके, लाइक सपोज वृंदावन गार्डन हो गया या मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, तो देखोगे कि कई कई इसके फॉर्म्स होते हैं, फ्लोर डिजाइन होते हैं, लैंडस्केप डिजाइन होते हैं, तो क्या एक आर्ट भी है. Since horticulture is a applied science and also it has an art form. So दोनों है, अप्लाइड साइंस भी है और आर्ट फॉर्म भी है. तो ये आप सब सीखोगे ड्यूरिंग ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. नाउ ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर. सो हॉर्टिकल्चर जैसे बताया था कि डिफरेंट ब्रांचेज हैं. तो फर्स्ट हो गया आपका पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस क्रॉप, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्लांट प्रोपगेशन, अर्बोरिकल्चर. सो आप देखोगे बुक्स में कई, कुछ लोगों ने छः रखा है, किसी लोगों ने 7 रखा है, लेकिन अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से इसका डिवीजन दिया गया है. लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि आपको जानना चाहिए. सो डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर. तो फर्स्ट, pomology. So again, pomology derived from two Latin words. Pomum means fruit and logos means study. ये जो भी वर्ड्स है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में. Pomum means fruit and logos means study. So pomology means study or cultivation of fruit crops. Okay. So इसमें हम लोग फ्रूट क्रॉप के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, एग्जाम्पल क्या हो गया, जितने भी फ्रूट क्रॉप्स है, वो मैंगो हो, एप्पल हो, गुआवा हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. So this is the pomology, means study of or cultivation of fruit crops. Now come to the second, that is called olericulture. Again, it is derived from two Latin words. Oleris means potherb and cultura means cultivation. Means potherb cultivation in modern day it is generally broadly used to indicate the cultivation of vegetables. So olericulture is nothing but it is the cultivation of vegetables. And again vegetables में कई vegetables हैं. मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हूँ, लाइक पोटैटो, ओकरा, कैरोट, रेडिश, etc. So olericulture is the study of vegetables. Now come to the third one, floriculture. So again it is derived from two words. Florus means flower and cultura means cultivation. So as name indicates, it is the study or cultivation of flower crops like rose, jasmine, marigold. So आप लोग फ्लावर आप लोगों को लगाने के लिए और उगाने में आपको काफी इसके लिए आपको मौके मिलेंगे. Now arboriculture. So this branch deals with raising the perennial trees meant for shade, avenue और ornamental purposes. ये बहुत वे. और बोरिकल्चर देखोगे हम लोग जनरली जो भी हमारे पास ये रोड साइड होता है लगाते हैं, क्यों कि इससे छाया मिलेगा. छाया मिलेगा आपको गर्मी के दिन में, इससे काफ़ी, सपोज आप कहीं से आ रहे हो तो आप किसी पेड़ के किनारे आप रुक सकते हो, आराम कर सकते हो. तो फोलिथिया हो गया, कैसिया हो गया, गुलमोहर हो गया, ये सब पौधे जो है ना मेनली पेरिनियल ट्री होते हैं और शेड एवेन्यू के लिए या ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए लगाए जाते हैं. देन कम टू द प्लांटेशन क्रॉप. So these are the crops which are cultivated in an extensive scale in large contiguous area, owned and managed by an individual or a company, or whose produce is utilized only after processing.
जैसे कि आप देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, रबर हो गया, कोकोनट हो गया, कोकोआ हो गया। ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स है। बच्चे जनरली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बच्चे, मैं लास्ट टाइम ऐसा किया हुआ था कि बच्चे से मैं पूछा कि प्लांटेशन क्रॉप क्या है? सर, जो पौधे हम लोग लगाते हैं फील्ड में उसको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप नहीं है जो एक्सटेंसिव स्केल पे ग्रो किया जाता है और जिसका प्रोसेसिंग होता है, जैसे कॉफ़ी, टी जो भी है, रबर हो गया, कोकोनट हो गया। तो plantation crops are also part of horticulture. Now spices. So again, spices are those plants the product of which are made use of as food adjuncts to add aroma and flavor. जैसे कि आप घरों में जब सब्जियां बनाते हैं तो मसाले के रूप में यूज होता है, लाइक पेपर हो गया, कार्डेमम हो गया, क्लोव हो गया, सिनेमम हो गया. So these are all spices. Again, one more word is there that is called condiments. So these are the plants, the products of which are made use of food adjunct to add taste only. वो है, अब दोनों में डिफरेंस है, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स में डिफरेंस है. वो क्या है कि इट विल ऐड एरोमा एंड फ्लेवर. हियर कंडिमेंट्स आर going, it is going to add taste. So like turmeric, ginger, red chili, garlic. So these are the condiments. Now landscape gardening. So landscape gardening deals with landscape architecture and such plants material that is essential to landscape development. So in practical sense, the identification of plants, planning, planting, and maintenance of home grounds like city, rural park, school grounds, municipal estates आर द फेज ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग. जैसे आप जाते हो कहीं भी तो लैंडस्केपिंग किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग अच्छी तरह से उसका मेंटेनेंस हो. आपने देखा होगा लॉन हो गया, टोपियरी हो गया, ये सब क्या है? दैट इज पार्ट ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग. देन नेक्स्ट इज फ्रूट टेक्नोलॉजी. सो इट डील्स विद प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. तो जैसे बताया था कि पोस्ट हार्वेस्ट. तो सपोज आपने जैसे बताया था कि जैसे आंवला हो गया, आंवला का आज के डेट में जो उसका दाम है बहुत कम है, लाइक 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के जी बिका है. लेकिन अगर आंवला का मुरब्बा बना दीजिएगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हमने वैल्यू एडिशन कर दिया. That is called processing and preservation of produce of horticulture crop. That comes under food technology. Okay, so I think this is all about. So thank you very much.